بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے سفر سے واپس آ کر میں پہلے کی طرح عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگا۔ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ میرے پاس اتنی دولت جمع ہو چکی تھی کہ اسے پوری طرح خرچ کرنا تقریباً ناممکن نظر آتا تھا۔ اس کے باوجود میرا اور سفر کرنے کا خیال دل کو کھینچتا رہتا تھا۔ آخر مجھ سے رہا نہ گیا اور سوداگری کا عمدہ سامان لے کر بصرہ جا پہنچا۔ وہاں ایک جہاز سفر پر روانہ ہونے کے لیے بادبان کھول رہا تھا۔ بڑے بڑے تاجر جہاز میں موجود تھے۔ میں نے فوراً جہاز پر اپنا سامان لدوایا اور ان کا ساتھی بن گیا۔ جان پہچان ہونے میں کیا دیر لگتی ہے، میری ان سے اچھی دوستی ہو گئی۔ چلتے چلتے ہم ایک جگہ پہنچے جس کا نام چین تھا۔ ہم سب خوش تھے، بیٹھے سفر اور تجارت کی باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں آندھی آئی اور اس زور کی بارش برسی کہ ہم سب بھیگ گئے اور ہمارا سامان بھی۔ ہم نے جلدی سامان کو بوریوں سے ڈھک دیا تاکہ بارش سے خراب نہ ہو جائے۔ خدا سے دعا مانگنے لگے کہ اس ناگہانی آفت سے ہمیں چھٹکارا ملے۔ ادھر کپتان نے اپنی کمر کسی، بازو چڑھائے اور مستول پر چڑھ کر دائیں بائیں نظر دوڑائی اور پھر ہماری طرف دیکھ کر سر پیٹنے اور داڑھی نوچنے لگا۔ ہم نے کہا، کپتان صاحب کوئی خیر کی خبر سناؤ۔ اس نے جواب دیا، اب خیر کی خبر کہاں، خدا سے دعا مانگو کہ ہمیں نجات حاصل ہو۔ آندھی ہمارے جہاز پر غالب آ چکی ہے، آخری سمندر میں لا پھینکا ہے۔ یہ کہہ کر مستول سے اترا، ایک صندوق کھول کر ایک کتاب نکالی، کچھ پڑھا اور کہنے لگا، اے جہاز والو، اس کتاب میں ایک عجیب بات ہے، یہ کہ جو اس سمندر میں پہنچا وہ بچ کر نہ نکلا بلکہ ہلاک ہو گیا۔ اس سمندر کے ساتھ جو ملک ہے اس کا نام اقلیم الملوک ہے۔ یہاں حضرت سلیمان بن داؤد کی قبر ہے۔ جو کشتی یہاں پہنچتی ہے اسے سمندر سے ایک مچھلی نکل کر نگل جاتی ہے۔ ہم حیران و پریشان ہو کر کپتان کی باتیں سن رہے تھے کہ جہاز اوپر نیچے اچھلنے لگا اور بجلی کی کڑک سنائی دی۔ ڈر کے مارے ہمارا برا حال ہو گیا۔ اتنی دیر میں ایک پہاڑ جیسی مچھلی جہاز کے سامنے آ پہنچی۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم تھوڑی دیر کے مہمان ہیں۔ ہم مچھلی کی ڈراؤنی شکل پر تعجب کر رہے تھے کہ ایک اور مچھلی آدم کی۔ وہ ڈھیل ڈول اور ڈراؤنے پن میں پہلی مچھلی سے بھی 10 ہاتھ آگے تھی۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو زارو قطار نہ رو رہا ہو۔ اتنے میں تیسری مچھلی آ گئی جو باقی دونوں سے زیادہ لمبی اور چوڑی تھی۔ تینوں مچھلیاں جہاز کے گرد چکر کاٹنے لگی۔ تیسری مچھلی چاہتی تھی کہ پورے کے پورے جہاز کو ایک ہی دفعہ ہڑپ کر جائے۔ اچانک ہوا اس زور سے چلی کہ جہاز کو تیر کی طرح مچھلیوں سے دور اڑا لے گئی۔ بد نصیبی نے پھر بھی ہمارا ساتھ نہ چھوڑا۔ ہوا جہاز کو لیے جاتی تھی کہ ایک بلند چٹان نظر آئی۔ ہوا نے جہاز کو بلند چٹان پر لا پٹکا۔ جہاز ٹکر کھا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ باقی لوگوں کا مجھے پتہ نہیں کیا انجام ہوا۔ جہاز کا ایک تختہ میرے ہاتھ آ گیا۔ میں اس پر سوار ہو گیا۔ کبھی ہوا کے جکھڑ آتے، کبھی موجوں کی ریل پیل میں پھنس کر تختہ اچھلتا گرتا۔ میں نے بھی جان لڑا دی، تختے کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ میں دل میں کہتا تھا، سندباد جہازی، تو سمندر کے سفر سے باز کیوں نہیں آتا؟ تجھے یاد نہیں، ہر سفر میں مرنے سے بال بال بچتا رہا ہے۔ تو اتنا لالچی ہے کہ پچھلی تمام مصیبتوں کو بھول کر دولت اکٹھی کرنے نکل پڑتا ہے۔ کیا تیرے پاس مال و دولت کی کوئی کمی تھی؟ یا اللہ، میری توبہ، 1000 بار توبہ، جو اب بھی میں سفر کروں یا سفر کا خیال بھی دل میں لاؤں۔ 2 دن اور 2 راتیں میں تختے سے چمٹا بہا چلا گیا۔ تیسرے دن تختہ ایک جزیرے کے ساحل پر جا لگا۔ وہاں بہت سے درخت تھے، ندیاں بہہ رہی تھیں۔ بھوک کے مارے میں جانے کتنے پھل کھا گیا اور کتنا پانی پی گیا۔ جان میں جان آئی تو جزیرے کو دیکھنے والنے کو دل چاہا۔ گھومتے گھماتے مجھے ایک بڑی ندی نظر آئی جس میں پانی کا بہاؤ غضب کا تیز تھا۔ مجھے فوراً یاد آیا کہ چھٹے سفر میں ندی میں کشتی پر سفر کرنے سے میری جان بچی تھی۔ سوچا کہ کسی طرح لکڑیاں جمع کر کے کشتی بناؤں، شاید اس مرتبہ بھی کشتی مجھے کسی آبادی تک پہنچا دے۔ آس پاس اونچے اونچے درخت تھے، مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ سندل کے درخت ہیں۔ میں نے ان درختوں کی لکڑیاں اکٹھی کر لی، پھر نرم شاخیں اور گھاس لے کر انہیں رسی کی طرح بنایا۔ ان رسیوں
से लकड़ियों को मजबूत बांधा। यूं एक तख्तानुमा कश्ती तैयार हो गई। मैंने दिल में कहा, अगर मैं बच गया तो ये सिर्फ खुदा का करम होगा। मैंने कश्ती नदी में डाली और खुदा पर भरोसा करके चल पड़ा। 3 दिन गुजर गए। प्यास लगती तो नदी का पानी पी लेता, लेकिन खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं बिल्कुल कमजोर हो गया और मेरा सर चकराने लगा। चिड़िया के बच्चे जितनी जान भी मुझ में न रही। कश्ती आखिर एक पहाड़ के पास पहुंची, जिसके दरमियान से होकर नदी गुजरती है। मुझे पिछली नदी की तंगी याद आई। खौफ मुझ पर गालिब आ गया। मैंने चाहा कि कश्ती को जू तू करके किनारे तक ले जाऊं और उतर पड़ूं। नदी का बहाव बहुत तेज था और मेरी एक न चली। पहाड़ से गुजरकर नदी एक वादी में पहुंची, जहां वो आबशार की सूरत में नीचे गिरती थी। बुलंदी से पानी के गिरने का शोर सुनकर दिल दहला जाता था, मगर तेज बहते पानी के आगे मेरा क्या जोर चलता। कश्ती इधर उधर डोलती आबशार के रास्ते नीचे जा गिरी। खुदा को मुझे बचाना मकसूद था। ना तो कश्ती टूटी, ना मैं पानी में गिरा। जब होश ठिकाने आए तो देखा कि सामने एक अजीमो शान शहर है, जिसमें तरह तरह की खुशनुमा इमारतें हैं। शहर वालों ने जो मुझे इस तरह बहते देखा तो जाल और रस्से फेंक कर कश्ती को जकड़ लिया और खींच कर किनारे पर ले आए। मैं वहां आकर गिर पड़ा कि भूख प्यास मुसलसल डर से मुझ में जरा दम न था। जो भीड़ मेरे इर्द गिर्द जमा थी, उसमें से एक बूढ़ा मेरी तरफ बढ़ा, जो निहायत बारोब शख्स था। कद लंबा, जिस्म सेहतमंद, सर के बाल और दाढ़ी सफेद। वो मुझे हमाम ले गया। मैंने फटे पुराने मैले पिचैले कपड़े उतार फेंके और नहा कर नया लिबास पहना, जो बड़े मियाँ ने फराहम किया था। हमाम से वो अपने घर ले गया। घर वाले मुझे देखकर खुश हुए। मुझे एक सजे हुए कमरे में बिठाया। मेरे सामने नहायत उम्दा खाने चुन दिए। मैंने पेट भर कर खाया और मजे मजे के शरबत पिए। बड़े मियाँ ने अपने मकान के पहलू में एक घर मेरे रहने के लिए खाली करा दिया। कई मुलाजिम मेरी खिदमत के लिए मुकर्रर किए। 3 दिन तक मैं सुबह शाम बेहतरीन खानों से लुत्फ अंदोज होता रहा और जो कमजोरी मुझे सफर के दौरान में लाहक हुई थी, बिल्कुल दूर हो गई। चौथे दिन बड़े मियाँ आए तो कहने लगे, बड़ी खुशी की बात है, तू पूरी तरह तंदुरुस्त हो गया। तुझसे मिलकर हम सब बहुत खुश हैं। मेरे साथ चल और जो माल तेरे पास है उसे बेच डाल। जो आमदनी हो उससे नया माल खरीद। सौदागरी इसी लेन देन का नाम है। बड़े मियाँ की बातें सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया और दिल में कहने लगा, मेरे पास कौन सा माल है जिसे बेचूंगा। बड़े मियाँ कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मैं मुंह से कुछ न बोला कि बड़े मियाँ ने मेरे साथ भलाई की थी। उनके कहे को जुटलाने की हिम्मत मुझ में न थी। बड़े मियाँ बोले, मेरे साथ बाजार चल। अगर तेरे माल की सही कीमत मिली तो बेच डाल, अगर ना मिले तो मेरे गोदाम में रखवा दे। शायद किसी और दिन अच्छी कीमत मिल जाए। मैंने दिल में सोचा कि बड़े मियाँ का कहना मानना ही पड़ेगा। चलकर देखूं तो सही ये किस माल का जिक्र कर रहे हैं। बाजार में पहुंचा तो देखा कि मेरी कश्ती वहाँ खुली पड़ी है और लकड़ियों की बोली लग रही है। मुझे पहली दफा पता चला कि मैं अनजाने में ढेर सारी कीमती संदल की लकड़ी ले आया हूँ। ताजर बोली लगाते रहे। 1000 दिनार पर बोली खत्म हुई। बड़े मियाँ ने कहा, आज तो माल के यही दाम मिलेंगे। बेचना है तो बेच डाल, वरना किसी बेहतर दिन का इंतजार कर। मैंने कहा, बाबा जी आपका हुक्म सर आंखों पर, जो कहेंगे मैं वही करूँगा। बड़े मियाँ बोले, क्या तू चाहता है कि ये संदल मुझे बेच दे? दूसरे 1000 दिनार दे रहे हैं, मैं 100 दिनार ज्यादा दूंगा। मैंने कहा, मंजूर। मैंने संदल आपके हाथ बेचा। बड़े मियाँ ने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि संदल उठाकर ले जाएं और 1100 दिनार गिनकर मेरे हवाले किए। थोड़े दिन बाद बड़े मियाँ ने मुझसे कहा, बेटा मैं तेरे सामने एक तजवीज रखता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि तू इसे मान ले। मैंने पूछा, वो क्या है? बड़े मियाँ ने जवाब दिया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा कोई बेटा नहीं, सिर्फ एक बेटी है जो बहुत खूबसूरत और बेइंतहा मालदार है। मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी तेरे साथ कर दूं और तू हमारे मुल्क में रह जाए। मैं ये सुनकर चुप हो गया और कुछ न बोला। बड़े मियाँ बोले, मेरा कहना मान ले, मैं तेरा भला चाहता हूँ। मेरी दौलत का तू मालिक बनेगा। अगर तू तिजारत करना चाहे या वतन वापस जाने की ख्वाहिश जाहिर करे तो तुझे कोई रोकेगा नहीं। मैंने कहा, बाबा जी आप मेरे बाप की जगह हैं। मैं इतनी तकलीफें उठा चुका हूँ कि अक्ल ने काम करना छोड़ दिया है। आप जो चाहें करें। ये सुनकर बड़े मियाँ ने काजी और गवाहों को तलब किया और बेटी का निकाह मेरे साथ कर दिया। जब मैंने बेटी को देखा तो वो बहुत खूबसूरत थी। उसके अलावा वो अपने साथ जितने हीरे
لیے जवाहरात, मोती, जेवरात और कीमती लिबास लाई थी। इतने लाखों अशरफियां खर्च करके भी खरीदे न जा सकते थे। मुझे उससे मोहब्बत हो गई और हम दोनों बड़े आराम से रहने लगे। कुछ अरसे बाद बड़े मियाँ का इंतकाल हो गया। उसकी तमाम दौलत और जायदाद मेरी मलकियत में आ गई। उसके गुलाम और नौकर चाकर मेरी खिदमत पे जा लाने लगे। बड़े मियाँ शहर में सौदागरों के चौधरी थे। उनके मरने के बाद मुझे चौधरी बना दिया गया। मेरी इजाजत के बगैर सौदागर किसी किस्म का लेन देन नहीं कर सकते थे। बाजारों में मेरा हुक्म चलता था। शहर वालों से मेरी रस्मों रात बढ़ी तो एक अजीब बात सामने आई। मैंने देखा कि हर चांद रात को उनकी हालत बदल जाती है। उनके पर निकल आते हैं और वो उड़कर आसमान की तरफ जाते हैं। बच्चों और औरतों के सिवा शहर में कोई नहीं रहता। मैंने दिल में कहा कि इस दफा मैं किसी से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे भी साथ ले चलें। जब नया चांद निकला तो उनकी सूरतें बदल गई। मैंने एक शख्स से कहा, खुदा के लिए मुझे भी साथ ले चल, मैं भी ऊपर की दुनिया की सैर करूंगा। उसने कहा कि ये मुमकिन नहीं, लेकिन मैं जिद करता रहा। आखिर वो राजी हो गया और मुझे कंधों पर उठा के उड़ने लगा। इस बात की खबर न मेरी बीवी को थी, न गुलामों को और न दोस्तों को। वो शख्स मुझे साथ लिए उड़ा चला जाता था, यहाँ तक कि हम आसमान के करीब पहुँच गए और मुझे फरिश्तों की आवाजें सुनाई दी जो अल्लाह की हम्द और सलाह कर रहे थे। हैरानी के आलम में मैं बेअख्तियार मेरे मुंह से निकला कि पाक है अल्लाह और सब तारीफें उसके लिए हैं। मैंने ये कहा ही था कि आसमान से शोले हमारी तरफ लपके, जलकर राख हो जाने से बचने के लिए तमाम उड़ने वाले तेजी से नीचे उतरे। वो मरते मरते बचे थे, इसलिए मुझसे नाराज थे और मुझे एक पहाड़ पर उतार कर चले गए। मैं अकेला पहाड़ पर रह गया। मैंने खुद को खूब बुरा भला कहा कि न सैर करता न इस पहाड़ पर पहुंचता। समझ में न आता था कि पहाड़ से उतर कर कहाँ जाऊँ। इतने में दो लड़के मेरे करीब आए जो चांद की तरह खूबसूरत थे। उनके हाथों में सोने की छड़ियाँ थी जिनके सहारे वो चल फिर रहे थे। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। मैंने मुतअज्जिब होकर पूछा, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए और क्या करते फिर रहे हो? उन्होंने कहा कि हम खुदा के बंदे हैं। फिर सोने की एक छड़ी मेरे हाथ में थमा दी और चलते बने। मैं उन लड़कों के बारे में सोच ही रहा था कि पहाड़ के नीचे से एक अजदहा निकला। उसके मुंह में एक आदमी था जिसे वो आधा निगल चुका था। वो आदमी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, जो मुझे छुड़ाएगा खुदा उसे हर मुसीबत से निजात देगा। ये सुनकर मैं उसकी तरफ लपका। मैंने सोने की छड़ी अजदहे के सर पर मारी और वो आदमी को उगल कर भाग गया। वो शख्स मुझसे कहने लगा कि तेरी वजह से मेरी जान बची, मैं तेरा साथ ना छोड़ूंगा। हम पहाड़ पर इधर उधर उतर चढ़ रहे थे कि बहुत से लोगों को अपनी तरफ आते देखा। गौर से नजर डाली तो उनमें वो आदमी भी था जो मुझे लेकर उड़ा था। मैं उसके पास गया और नरमी से कहा, है दोस्त, जो सलूक तूने मेरे साथ किया वो दोस्ती में जायज नहीं। वो बोला, तुमने अल्लाह की तारीफ करके हमें मार ही डाला था। मैंने कहा, मुझे इल्म ना था कि मेरी हरकत से तुम लोग खतरे में पड़ जाओगे। आइंदा ऐसा हरगिज न करूँगा। ये सुनकर वो मुझे साथ ले जाने पर आमादा हो गया, मगर शर्त ये रखी कि उसके कंधों पर सवार रहते हुए मैं अल्लाह की हम्दो सना न करूँगा। मैंने उसकी बात मान ली। वो मुझे ले उड़ा और घर छोड़ आया। उन लोगों के साथ कभी कहीं न जगता न उनके पास उठना बैठना। ये शैतान की औलाद है और खुदा की याद से बेखबर। मैंने पूछा कि तेरा बाप उनके साथ कैसे निभा करता था? वो बोली, मेरा बाप उनके ग्रोह का न था न उन जैसी हरकतें करता था। मेरा बाप बहुत हो चुका। मेरी राय है कि जो कुछ हमारे पास है इसे बेचकर तिजारती माल खरीद और मुझे साथ लेकर वतन रवाना हो जा। मेरे माँ बाप मर चुके हैं, मैं अब यहाँ किसके लिए रहूँ? चुनाचा मैंने बड़े मियाँ की चीजें एक एक करके बेचनी शुरू कर दी और इस इंतजार में रहा कि कोई शख्स इस शहर से रवाना हो तो मैं भी उसके साथ हो लूँ। कुछ मुद्दत के बाद शहर की एक जमात ने सफर का इरादा किया। उन्होंने लकड़ी खरीद कर एक जहाज बनवाया। मैंने किराया देकर बीवी को उसमें बिठाया। जो मालो दौलत साथ ले जा सकता था वो उठा लिया, बाकी वहीं छोड़ा। जहाज रवाना हुआ। रास्ते पर हवा मुवाफिक रही। हम सही सलामत बसरा पहुँच गए और वहाँ रुके। एक कश्ती किराए पर लेकर बगदाद जा उतरे। मैं घर वालों और यार दोस्तों से मिला, अपना माल असबाब गोदामों में रखवाया। घर वालों को मेरे वापस आने की उम्मीद न रही थी। मेरे आखिरी सफर का अहवाल सुनकर उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। मैंने खुदा के हुजूर तौबा की कि अब मैं न समंदर का सफर करूंगा न खुश्की का। मालो दौलत की ज्यादा होनी अच्छी नहीं होती। दोस्तों, ये था मेरे साथ में सफर का हाल। खुदा
تم سب کو خوش و خرم رکھے۔